Welcome dear students and friends to this channel. So today we are going to start a new topic, that is linked list. So it is one of the linear data structure. So we will cover the linked list in different parts because it is one of the important topic of data structure as well as a big topic. So let us start this, and before going ahead, if you are not comfortable in structures, so just see my previous video because linked list implementation is dependent on the structure part. Okay, and few other data structures which I already covered are arrays or stacks and some C programming stuffs, applications of stack. So those who want to learn all these stuffs, because each and everything is ultimately interrelated, so then just go through my previous videos, and then it is very comfortable to you to learn ahead. So let us start linked list. So this is the part 1 of linked list. So we will cover in several parts. Okay, so what is linked list? First of all, linked list is a linear data structure in which there are several nodes. Okay, so each node is having two different values. So means two parts. Okay, first part is what? First part is data part. So this part we can say it is data part, and this is some sort of, we can say it is link, है ना? Or let us say it is link or anything, है ना? Next means address of next. So any node consisting of two parts, any node consisting of two parts. So let us assume this is a node. Okay, तो हर एक नोड में दो पार्ट होगा. फर्स्ट पार्ट आपका होगा डेटा और सेकंड पार्ट आपका होगा एड्रेस. सो एड्रेस, लेट अस सपोज आई एम डिक्टेटिंग बाय यूजिंग नेक्स्ट. ओके, और इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट अस अज्यूम 1000 लोकेशन पे. तो यहाँ कोई पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, लेट अस सपोज p. सो this is the node and data part and next part. Next means address part. So some structure pointer is pointing to this node, and this data part is having some value, let us assume 10 or whatever, and this is having some address. So अगर यहाँ किसी particular next आपके node का address है तो उसका address आ जाएगा, otherwise it may be null. Okay, in that case. So let us see how things are going on. So as an example, consider this part, consider this one as of now. Okay, now for the sake of example, let us assume this is your 1000 and this is your 2000. One more important thing is, जैसे array में contiguous memory allocation होता था, हमारे इस linked list में there is no contiguous memory allocation. फर्स्ट नोड के लिए अगर कहीं मेमोरी में 1000th लोकेशन पे जगह मिली है, सेकंड नोड के लिए हो सकता है सम 2000 है ना, सम 3000, सम रैंडम लोकेशंस. ओके, सो देयर इज नो व्हाट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन. सो इट इज 3000, इट इज 4000 and it is 5000, and obviously this part is not pointing somewhere, so it is null. And this part is what? This part is pointing to 2000 address, this is pointing to 3000 address, this is pointing to 4000, and same this is pointing to 5000. Okay, and for example, let us suppose this is what? This is some pointer. Okay, so this pointer is p, so p is pointing to 1000. ओके, तो इसका नोड किस तरीके से क्रिएट होगा? स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. इंस्ट्रक्ट नोड मैंने रखा है, ये इसका डेफिनेशन है. ठीक है, सो दिस पार्ट इज व्हाट? दिस पार्ट इज डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में इंटीजर डेटा है और एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का आपने पॉइंटर लिया है, दैट इज नेक्स्ट. ठीक है, सो दिस पार्ट इज व्हाट? दिस पार्ट इज डेफिनेशन, दिस पार्ट इज डेफिनेशन. ओके, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज डिक्लेरेशन. तो ये क्या है? यहाँ पे डिक्लेरेशन है. तो ये डिक्लेरेशन से क्या होगा? डिक्लेरेशन से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तो जी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी. ओके, एंड जी में अगर मैं बात करूं तो जी में इस तरीके से, लेट अस सपोज सम 1000 लोकेशन, एंड इसका डेटा पार्ट होगा एक. तो यहाँ पे क्या होगा? एक यहाँ पे डेटा पार्ट होगा और एक यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होगा. तो डेटा पार्ट में क्या वैल्यू स्टोर होगी? ए, और नेक्स्ट पार्ट में अभी फिलहाल एक कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इट इज नल. Okay, so I hope that this is clear. This is a what? Single what structure. Okay, or single node. तो इस तरीके के नोड्स क्रिएट होंगे, फिर उनकी इंटरलिंकिंग करेंगे, है ना. एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके,
And okay, now understand one important thing, that is, so let us suppose if I want to print p है ना, and specifically star p and dot data, okay, for this particular example, star p dot data. So star p dot data what will give? p means p is the address. So what is address? 1000, and 1000 को select किया, star means value at 1000 select हो गया, और उसका कौन सा पार्ट? डेटा पार्ट. तो डेटा पार्ट उसका क्या है? a. तो इसी पर्टिकुलर थिंग को मैं किस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ये पॉइंटर है, एड्रेस है, तो p टेंड्स टू डेटा, ओके, p एरो डेटा. तो ये दोनों के दोनों मुझे क्या देंगे? दीज टू वैल्यूज विल रिटर्न मी व्हाट? सेम, है ना, सेम इज व्हाट? a इज द आंसर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्टार p और डॉट व्हाट नेक्स्ट अगर प्रिंट करूं, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, p एरो नेक्स्ट पार्ट, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? दिस विल प्रिंट व्हाट? p मींस 1000 एंड स्टार p मींस 1000 सिलेक्ट हुआ, उसका नेक्स्ट पार्ट. सो व्हाट इज 1000 का नेक्स्ट पार्ट? इट इज 2000. ओके, और डायरेक्टली वी कैन सी लाइक दिस. सो दिस विल गिव अस 2000 इज आंसर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं डायरेक्टली p एरो next arrow next. So what will be the answer in that case? So the answer in that case very simple. So very simple. So what is first of all p arrow next? So what is p arrow next? p arrow next. So p arrow next means आप कहां पहुंच गए? p क्या है? 1000. 1000 का नेक्स्ट आपने जब किया तो आप यहां कहां पहुंचे? 1000 का नेक्स्ट मतलब 2000, तो आप इस 2000 लोकेशन पे पहुंच गए. सो दिस इज व्हाट? दिस इज 2000. और 2000 का आपने नेक्स्ट निकाला. सो 2000 का नेक्स्ट क्या निकल के आएगा? 2000 के नेक्स्ट में क्या है? 2000 के नेक्स्ट में है दिस 3000. ओके, सो दिस विल गिव यू 3000. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ लिंक लिस्ट, दैट इफ you have the starting node address, that is also called as head node, है ना. this is head node. तो head node का या starting node का एड्रेस है, तो आप उस लिंक लिस्ट में कहीं भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जा सकते हैं. okay, by using next something like that. okay, now if you write like p or plus equal to 1, okay, p is 1000, 1000 plus equal to 1, or otherwise what? p equal to p plus 1, both are same. So this is incorrect, this is incorrect. okay, so this will not work, this will not work. Why it will not work? है ना, because what? this will not work. Why? because not contiguous memory allocation. okay, तो non contiguous memory allocation, non contiguous memory allocation. okay, so I hope that this is clear to you. So the basic concept of what your linked list. okay, now you are comfortable in the basics of that. Now we are going, okay, to solve some problems, और हमें कुछ प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखना है. तो जैसे फर्स्ट प्रोग्राम है तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, है ना. देन उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं उसको वन बाय वन. तो पहले यहाँ है वो राइट अ प्रोग्राम, दैट इज web in short, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डेटा ऑफ द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. ओके, सो एज ऑफ नाउ सपोज इस तरीके का कोई लिंक लिस्ट है ना, जहाँ पे यहाँ आपका सपोज 10 है, ये यहाँ प्रिंट कर रहा है, लेट अस सपोज s है, ये आपका 1000 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, लेट अस सपोज दिस इज योर 2000, दिस इज 20, ओके, एंड दिस इज और 30, and this is what 3000, and linking is also there, so this is 40, okay, and this is what, suppose this is 50, and the last is what? last is null because it is not pointing. तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा मेरा 2000, तो 2000 वाले पॉइंट नोड को पॉइंट करेगा, इसमें होगा आपका 3000, इसमें होगा आपका 4000 लाइक दिस, एंड इसमें होगा आपका 5000. तो ये है आपका 4000 एंड दिस इज योर 5000. ओके, सो लेट अस नाउ
Understand very carefully. So what is going? So the very first thing is मुझे क्या प्रिंट करना है, लास्ट नोड का एड्रेस. ओके, तो लास्ट नोड के एड्रेस पे मैं कैसे मूव कर सकता हूँ, वेरी सिंपल प्रोग्राम. तो फर्स्टली लेट अस सपोज अगर कोई आया ही ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एड्रेस इसमें हो ही ना, मींस लिंक लिस्ट एम्प्टी हो तो एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू होगी नल. तो अगर लिंक लिस्ट हमारी क्या है, एम्प्टी है तो एस डबल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल. और जब एस डबल इक्वल टू नल हो जाएगा तो वी कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो लास्ट नोड, है ना. तो यहाँ क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए. तो एरर हम यहाँ प्रिंट करेंगे. ओके, वी आर सपोज टू प्रिंट एरर. बट इफ लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी है, ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्या अज्यूम कर लेते हैं, नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी मीन्स एटलीस्ट वन नोड है या एक से ज्यादा नोड है. तो हमें एक लूप रन करना है डेफिनेटली. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंटर सेट करेंगे ऑलरेडी. क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंटर को मूव कर देंगे आगे तो हमारा स्टार्टिंग नोड का एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा और वापस हमें स्टार्टिंग नोड का एड्रेस नहीं मिलेगा. ओके, दैट इज द मेन पॉइंट. तो यहाँ मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे पॉइंटर को एक स्टोर कर देते हैं या एक पॉइंटर हम स्टार्टिंग में, है ना, रख लेते हैं. और सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ से कि वाइल लूप रन करूंगा, वाइल, और यहाँ एक पॉइंटर मैं यहाँ फिक्स कर लेता हूँ, लेट अस सपोज p. ओके, तो p इक्वल्स टू s. तो यहाँ एक पॉइंटर p रखा मैंने. सो लाइक दिस, यहाँ p रखा और मैं कब तक आगे बढ़ूंगा, मुझे लास्ट नोड तक जाना है. तो वाइल लास्ट नोड मुझे कहां से पता चलेगा कि उसका नेक्स्ट फील्ड क्या होता है, नल होता है लास्ट नोड का. तो मैं p को मूव कर देता हूँ, वाइल p और वट एवर, है ना, एनीथिंग, p और s एनीथिंग. सो वाइल p इज नॉट और p ऑफ नेक्स्ट, while p of next is not equal to what, null. while p of next is not equal to null, तो मुझे क्या करना है, p को आगे बढ़ाना है ना. तो p इक्वल टू p नेक्स्ट, ये फॉलो करना है. तो इससे क्या होगा, p आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि p का नेक्स्ट नल नहीं है, p आगे बढ़ेगा. p का नेक्स्ट नल नहीं है तो p नेक्स्ट पे p पॉइंट करेगा. सिमिलरली पॉइंट करते जाएगा, लास्ट में जाके ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, बिकॉज p नेक्स्ट इज नल. तो एट लास्ट ये मूव होते 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 लास्ट में कहाँ आ जाएगा, p लास्ट में यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और जब लास्ट में p यहाँ आएगा तो फाइनली ये लूप से हम बाहर आ जाएंगे. तो हमें इसका डेटा प्रिंट करना है. तो डेटा हम सिंपली प्रिंट कर देंगे. तो डेटा प्रिंट करने के लिए सपोज प्रिंट कमांड सिंपली, सो प्रिंटिंग व्हाट, p डॉट डेटा, p जहां पॉइंट कर रहा है उसका डेटा पार्ट. सिंपली डेटा पार्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा. एंड देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो हमने पॉइंटर बनाया था, है ना, p, तो इसको हमें फ्री करना पड़ेगा. फ्री मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ना. तो हमें इसको फर्दर फ्री करना पड़ेगा. तो इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाइक फ्री ऑफ व्हाट, p. सबसे पहले p यहाँ पॉइंट कर रहा है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसके बाद कि p इक्वल्स टू p नेक्स्ट. तो p नेक्स्ट कितना है, नल. तो p कहाँ पॉइंट करने लगेगा, नाउ p इक्वल टू व्हाट, नल, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, with the help of this line. Okay, and after that what, after that free of p. So free is a function, don't worry, I will explain. Free is a function which will free the pointer. Okay, deallocate the memory. So basically there are there is what, there is, understand very carefully, basically there is a header file that is called stdlib, stdlib.h, header file. तो इस हेडर फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक मैलॉक होता है, ठीक है, आपका कैलॉक होता है और आपका फ्री फंक्शन होता है. तो जो मैलॉक फंक्शन होता है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए. रन टाइम पर आपको अगर मेमोरी रिक्वायर्ड है तो आप किस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मैलॉक फंक्शन को. ठीक है, और फ्री जो फंक्शन होता है दैट इज फॉर योर डायनेमिक मेमोरी डीएलोकेशन, जो आपने एलोकेट की है उसको डीएलोकेट करने के लिए. ओके, सो दीज आर द फंक्शन. तो अभी फ्री फंक्शन यहाँ यूज किया है क्योंकि वो पॉइंटर क्या है, वाइल्ड पॉइंटर होगा, है ना, अननेसेसरली हम यूज कर रहे हैं या अननेसेसरली यूज कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली वाइल्ड पॉइंटर. तो इसको हमें फ्री करना पड़ेगा. सो दैट इज वेरी बेसिक प्रोग्राम, है ना. तो हमें लास्ट नोड का डेटा प्रिंट करना है. सो नाउ एक्चुअल मूव टू प्रोग्राम. सो दिस इज द प्रोग्राम. फंक्शन का नेम हमने रखा है प्रिंट लास्ट नोड डेटा.
तो यहाँ स्ट्रक्ट नोड स्टार एस मीन्स आपके पास लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस आया है, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे केस में क्या था, हमने ये एस अज्यूम किया था, दिस एस, तो ये एस मीन्स स्टार्टिंग नोड का एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ एक पॉइंटर सेट किया मैंने, पॉइंटर सेट किया, तो पॉइंटर सेट करने से क्या होगा कि जहां एस पॉइंट कर रहा था वहां ये पॉइंट करने लगेगा। सो सिमिलरली दिस इज व्हाट एस, ओके, and this is what, let us suppose 10, and this is let us suppose 20, and this is let us suppose 30, okay, and this is let us suppose 40, and the last node is what, last node is 50, okay, and this part is what, this part is null, and what p हमने यहाँ पॉइंट कराया जहाँ s पॉइंट कर रहा था, p को भी यहीं स्टैंड किया, एंड p इक्वल टू नल। अगर ये p इक्वल टू नल मीन्स ये फर्स्ट नोड कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, p और s एक ही जगह पॉइंट कर रहा है, मीन्स लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो एम्प्टी है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और एग्जिट करेंगे 1 के साथ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिट 1 मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये है ना डिक्टेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि दैट ना अनसक्सेसफुल ऑपरेशन। एंड फिर नेक्स्ट अगर लेट अस सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने का मतलब क्या है, एग्जिट जब 1 हो जाएगा तो आगे प्रोग्राम रन नहीं होगा। बट अगर कुछ लिंक लिस्ट है यहाँ अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे कि p नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ओके। तो अगर p का नेक्स्ट मीन्स ये पार्ट अगर नल नहीं है तो p को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो p इक्वल टू p नेक्स्ट करेंगे। तो p यहां से कट होके यहाँ आ जाएगा, फिर यहां से कट होके यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पर, फिर p यहां से मूव होके यहाँ आ जाएगा, फिर फाइनली p हमारा यहाँ होगा, ओके। तो जब यहाँ होगा तो p का नेक्स्ट क्या है, नल। तो ये यहाँ कंडीशन है p नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, दैट इज फॉल्स, तो बाहर आएंगे। तो दिस इज व्हाइल कंप्लीटेड, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब हम उस नोड पर हैं जो लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड का डेटा प्रिंट करना है, तो %d p एरो डेटा, तो p एरो डेटा से क्या प्रिंट होगा इसका आउटपुट। सो दिस आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम एज ऑफ नाउ इज व्हाट 50 इन अवर केस, है ना। एंड p इक्वल्स टू p नेक्स्ट, सो p इक्वल्स टू p नेक्स्ट, तो p नेक्स्ट कितना है, नल, p अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो फाइनली जो p करेगा, p इस केस में क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू व्हाट, नल एट लास्ट, ठीक है। So this is the impact of this line. This is the impact of this line. Okay, and at last we are freeing p. So free p means है ना deallocate हो जाएगी memory. Deallocate है ना memory for what? For p. Okay, because p का function overall complete हो चुका है. So this is our very first program which is what, printing the last node data of a linked list. ओके, तो ये मैं कंप्लीटली सारा ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, है ना, जिसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिया, ये पॉइंटर हमने सेट किया। अगर मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में पॉइंटर क्यों सेट किया, मैं एस से भी काम कर सकता था कंप्लीट, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरी लिंक लिस्ट फिर, है ना, आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस फिर गुम हो जाता है ना, स्टार्टिंग हमें हेड पता नहीं चलता कहाँ से, क्योंकि अल्टीमेटली एड्रेस अगर हमारे पास है स्टार्टिंग का तभी वो लिंक लिस्ट यूजफुल है। अगर एड्रेस हमारा हो गया तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो जो है मेमोरी स्पेस जो है आपका ऑक्यूपाइड है, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ओके, लिंक लिस्ट हमारी, है ना। सो नाउ कम टू नेक्स्ट। सो व्हाट इज नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम वेब टू फाइंड एलिमेंट x इन द गिवन लिंक लिस्ट। तो गिवन लिंक लिस्ट में हमें x एलिमेंट फाइंड करना है। तो इसका क्या मेथड हो सकता है, means we are just creating the logic first of all, then we will see what how actually the things are going on programmatically. तो हम पहले लॉजिक देखते हैं। so what is logic, write a program to find element x in the given linked list। तो x एलिमेंट को फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ एक लिंक लिस्ट है, और लिंक लिस्ट में अज्यूम अगर x हो ही ना, है ना, तो या फिर x हो भी सकता है। तो जैसे ये है लिंक लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे एनी वैल्यू ले a, ठीक है, दिस इज s, and this is what b, this is what c, this is what d, and this is some x, and this is what e. Let us suppose this is the linked list and this part is what, null. So this is what, null. Okay, so this again addresses are 1000 2000 and like this. तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं पहले, अगर हमारा क्या है x हो ना वहां पे, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि लिंक लिस्ट s जहां पॉइंट कर रहा है वो स्पेस ही क्या हो, नल हो, ठीक है, लिंक लिस्ट ही ना हो हमारे पास। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैं क्या देखूंगा
कि अगर लिंक लिस्ट नल है मीन्स है ही नहीं, है ना, तो है ही नहीं तो मैं फिर वहां क्या सर्च नहीं कर सकता, तो सर्च क्या हुआ मेरा, अनसक्सेसफुल हुआ, है ना। अनसक्सेसफुल के केस में भी मैं क्या कहूंगा कि इट इज रिटर्निंग व्हाट, -1। ओके, सम सॉर्ट ऑफ लीनियर सर्च है ना, लीनियर सर्च मीन्स लीनियरली हमको सर्च करना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पे एक लूप रन कर सकते हैं व्हाइल, है ना, s is what not equal to null, s is pointing, so s is not equal to what, null, है ना, and what, s जो डेटा है हमें क्या x सर्च करना है ना, x डेटा is not equal to x, मीन्स अगर s जहां पॉइंट कर रहा है वो नल ना हो, मीन्स नोड एटलीस्ट होना चाहिए, और s का डेटा, है ना, नल, s का डेटा x ना हो। अगर ये कंडीशन है तो हमें s को कहां मूव करना है, आगे मूव करना है, तो s इक्वल टू s नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, s हमारा आगे मूव होता जाएगा, ठीक है। तो s यहाँ से मूव होके कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर यहाँ से मूव होके हमारा नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर यहाँ से मूव होके हमारा नेक्स्ट पे आ जाएगा s, और फिर यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, है ना। बट अगर लेट अस सपोज ये x इसमें होता ही ना, या लिंक लिस्ट ना होती, तो फिर इसके बाद क्या कंडीशन बन सकती थी कि इफ s डबल इक्वल्स टू क्या आ गया, नल। तो s डबल इक्वल्स टू नल होने से क्या हो गया, लेट अस सपोज ये हमारा यहाँ पे, है ना, p होता, फॉर एग्जांपल p, तो यहाँ s कहाँ आ जाता है, यहाँ, फिर ये अगेन कंडीशन फॉल्स, तो s कहाँ आ जाता, s यहाँ से कहाँ आ जाता, s इक्वल टू हो जाता आपका व्हाट, नल। तो नल हो जाता तो ये कंडीशन फॉलो होती, है ना, फॉल्स हो जाती तो बाहर आते लूप से। फिर s इक्वल टू नल है तो डेफिनेटली इसका मतलब अनसक्सेसफुल सर्च हुआ है, ठीक है। अनसक्सेसफुल सर्च है आपका, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट व्हाट, -1 और एग्जिट -1 या रिटर्न -1, वॉट एवर, है ना, रिटर्न करेंगे यहाँ पे -1, तो रिटर्न करेंगे -1। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, अनसक्सेसफुल सर्च, अनसक्सेसफुल सर्च। ओके, एंड फिर एल्स के केस में क्या हो सकता है कि अगर एस नल ना हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि एस का डेटा अगर नॉट इक्वल टू एक्स मीन्स एस का डेटा मिल जाए, है ना। तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपका अगर डेटा मिल गया है ना, तो पर्टिकुलर एस वहां स्टे कर जाएगा, एस स्टे करेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1 को, तो मीन्स सर्च सक्सेसफुल हुआ है, तो रिटर्न करेंगे 1 को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सक्सेसफुल सर्च, successful search। okay, so let us see quickly this concept। अगेन क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे s की प्लेस पे हमें कोई पॉइंटर, है ना, होल्ड करके या छोड़ के जाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ p को या किसी रैंडम पॉइंटर को ले लेते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो फाइंड डेटा x, है ना, सो दिस इज द फंक्शन नेम फाइंड डेटा x। तो ये यहाँ पे ये हमारा एरे आई है, ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस आया है लिंक लिस्ट का s, और यहाँ हमने p पॉइंटर को स्टे कराया हुआ है, ठीक है। तो ये p पॉइंटर स्टे कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे s है, तो यही मैंने किसको सेट कर दिया, p को भी सेट कर दिया, ठीक है। a है, देन b, देन c, देन d, देन व्हाट, x, एंड देन e, एंड देन नल पार्ट। ओके, देन फिर क्या करेंगे हम, फाइंड व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू नल एंड p डेटा इज नॉट इक्वल टू x। p नल नहीं है और p का डेटा x नहीं है, तो डेफिनेटली अभी नहीं है, तो p को क्या करना है, p को, तो ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये किसका पार्ट माना जाएगा, while का, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फिर p को आगे मूव करेंगे, क्योंकि p नल नहीं है और p का डेटा भी x नहीं है, सो p अगेन मूव टू नेक्स्ट, अगेन p मूव टू नेक्स्ट, एंड दिस टाइम p इज हियर। तो ये कंडीशन क्या हुई, p नल नहीं है बट p का डेटा x है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम बाहर आए, तो यहाँ p इज डबल इक्वल टू नल, नो, दिस कंडीशन ऑल्सो फॉल्स, तो एल्स पे आएंगे। तो एल्स में p को हमने क्या किया, p को p नेक्स्ट पे पॉइंट कराया, ठीक है, p को हमने p नेक्स्ट पे पॉइंट कराया, तो p नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट इज नॉट p नेक्स्ट, इट मस्ट बी, दिस लाइन इज इनकरेक्ट, इट मस्ट बी, p हमारा कंप्लीट हो गया, तो p को हमें कहां पॉइंट कराना है, नल पे, ठीक है, दिस लाइन मस्ट बी दिस p, दिस लाइन मस्ट बी दिस, p इक्वल्स टू नल। तो p कहां पॉइंट करने लगेगा, p यहां पॉइंट ना करके फिर कहां आ जाएगा, p नल पे। तो हमारा, हमको पता है कि ये सक्सेसफुल सर्च हुआ है, तो नल पे कराया और फ्री कर दिया p को, ठीक है। तो फ्री करने से क्या हो जाएगा, डीएलोकेशन, और रिटर्न करेंगे 1, तो रिटर्न 1 मींस सक्सेसफुल सर्च। तो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज
successful search, +1 indicate successful search, and this -1 indicate what? Unsuccessful search. Unsuccessful search. Okay, so this is the program for what? Finding X in the given linked list or linear search for searching an element. This is the else part. So I hope that up till now it is clear. Next I will explain each and everything, how nodes are created dynamically or all the basic stuffs. Don't worry. So just consider the following linked list, and the linked list is also having some addresses. So it is 1000, it is 2000, it is 3000, randomly take it, 4000, 5000 and 6000. Okay, and this part is what? Again, this part is null, and this is what? This is 6000, and it is 5000, it is 4000. Observe very carefully, it is 3000 और यहाँ आएगा आपका 2000. ठीक है, अब ये प्रोग्राम है आपका फॉलोइंग लिंक लिस्ट. ये प्रोग्राम दिया हुआ है स्ट्रक्ट नोड, तो ये नोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेटा होगा और लिंक होगा, है ना. तो ये जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो ये डेटा होगा और ये लिंक होगा. सिमिलरली डेटा लिंक है ना, लाइक दिस. तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंटर लिया p. ठीक है, तो एक पॉइंटर लिया p और ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट है. दिस इज व्हाट? फर्स्ट. तो फर्स्ट कितना है? 1000 है. ठीक है, तो यहाँ p एक पॉइंटर लिया और p पॉइंटर जो दिख रहा है यहाँ पे p पॉइंटर लिया और p पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कराया? फर्स्ट ऑफ लिंक. तो p यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे करता हूं इसको, p what? p इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ लिंक. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. ओके, तो सबसे पहले p ऑफ फर्स्ट ऑफ लिंक क्या आएगा? तो फर्स्ट का लिंक कितना है? 1000. सॉरी, फर्स्ट का लिंक है 2000, है ना. तो इसका रिजल्ट आया 2000 और 2000 पे लिंक क्या है? 2000 का लिंक आपका आया व्हाट? 2000 ये है, 2000 पे लिंक क्या है? 3000. तो इसका रिजल्ट आया 3000. तो 3000 आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा? 3000 विल बी स्टोर्ड इन p. सो मीन्स p में कितना आ गया आपका? 3000. इनडायरेक्टली p पर यहाँ ये पॉइंटर सेट हो गया. Okay, so this is the impact of this line. Now come to next line कि first arrow link मतलब ये this first arrow link. Observe very carefully. First arrow link में p link of link स्टोर करना है, तो p link of link. तो ऑब्जर्व केयरफुली, p link. तो व्हाट इज p link? p यहाँ है 3000 पे, तो इसका लिंक कितना है? 4000. तो ये रिजल्ट आया 4000. और 4000 का लिंक अगर आप निकालेंगे तो व्हाट इज द लिंक ऑफ 4000? तो 4000 का लिंक कितना मिला मुझे? 5000. तो यहाँ रिजल्ट आया 5000. ठीक है, और ये 5000 स्टोर कहाँ करना है? दिस मस्ट बी स्टोर्ड इन फर्स्ट, है ना, लिंक. तो फर्स्ट के लिंक के प्लेस पर, तो फर्स्ट ये 1000, इसका लिंक ये. तो यहाँ मीन्स यहाँ क्या स्टोर करना है? यहाँ पे 2000 के प्लेस पे ये 5000 स्टोर करना है. मीन्स ये अब यहाँ पॉइंट ना करके ये कहाँ पॉइंट करेगा? दिस विल पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर सेल 5000. ओके, सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट? दिस लाइन. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइन. नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. ओके, सो अगेन आई एम रफिंग दिस, नो नीड, है ना, जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली. सो नेक्स्ट लाइन इज व्हाट? p link, p triple link. Okay, so p triple link, so p link, then link, then link equals to what? p. So p is what? p is your currently 3000. so ये 3000 मुझे स्टोर करना है. कहाँ पे करना है? 3000. देखते हैं p ऑफ लिंक कितना होगा. p कितना है? 3000. 3000 का लिंक है 4000. ठीक है, फिर 4000 का लिंक कितना होगा? 4000 का लिंक कितना है? 5000. ओके, इट इज क्लियर, है ना, फ्रॉम दिस. और फिर इसका भी लिंक है. तो ये 5000 का लिंक में क्या स्टोर करना है? 3000. तो 5000 का लिंक कहाँ है? यहाँ. तो 5000 के लिंक में यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? 3000. मीन्स यहाँ पॉइंट ना करके ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा? दिस विल पॉइंट टू दिस.
3000 location. Okay, so this is the impact of this line. Now come to the print part. So print part is what? First link. So first link क्या है? पहले इतना first link कितना है? फर्स्ट है आपका 1000, 1000 का लिंक चेंज हो चुका है, 5000 हो गया है ना, तो यहाँ आएगा 5000, देन 5000 लिंक. सो व्हाट इज 5000 लिंक? 5000 पे आइए, उसका लिंक में कितना है? 3000, तो रिजल्ट कितना आया? 3000. नाउ 3000 लिंक. सो 3000 लिंक देखेंगे, 3000 की लिंक में कितना है? 4000. सो इट इज 4000 और 4000 का डेटा. ओके, मींस 4000 पे जो भी डेटा होगा आपको, 4000 का डेटा. सो 4000 का डेटा आपका क्या प्रिंट होगा? 4000 ये है और इसका 4000 का डेटा क्या है? डेटा इज व्हाट? डी. सो दिस डी विल बी प्रिंटेड. सो हियर व्हाट विल बी द आउटपुट? सो द आउटपुट इज व्हाट? Output is D. Okay, for this program. So I hope that this is clear to you. Very simple program. Okay, linked list is given, structure is given, and some sort of code is given. So you are supposed to find few operations, few steps are there, and ultimately we are printing a single value. Okay, fine. So let us move to next. So what is next? Consider the following linked list. So again the same linked list. It is 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 and 6000. So this part is again null and this is 6000 and यहाँ क्या होगा? एड्रेस 5000. ये पॉइंट कर रहा है सी का नेक्स्ट या सी का लिंक 4000 पे. सो दिस इज 4000. यहाँ पे आपका होगा 3000 एंड यहाँ आपका होगा व्हाट? 2000. ओके, और लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट. ठीक है, और ये हमारा डेटा होगा और ये लिंक. तो हर नोड में डेटा और लिंक दोनों पार्ट होंगे. ठीक है, नाउ कम टू सम कोड इज गिवन. सो अगेन सेम, इट इज डेटा एंड लिंक. सो हर एक नोड में डेटा और लिंक है. कनेक्टिविटी ऊपर गिवन है. पी एक पॉइंटर लेना है. सो पी इज अ पॉइंटर. ओके, अगेन आई एम टेकिंग. सो सम पॉइंटर पी हैज बीन क्रिएटेड. ओके, एंड इसका भी कुछ एड्रेस होगा. लेट अस सपोज इसका एड्रेस है 8000. ठीक है, और P में क्या स्टोर करना है? तो देखिए फर्स्ट लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट लाइन इज व्हाट? P इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ लिंक ऑफ लिंक. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ लिंक ऑफ लिंक. तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ लिंक? फर्स्ट ऑफ लिंक फर्स्ट कितना है? 1000. 1000 पे लिंक क्या है? 1000 पे लिंक है, दिस इज 1000 पे लिंक है 2000. सो इट इज 2000 और 2000 का लिंक आपका कितना है? सो व्हाट इज द 2000 लिंक? सो 2000 पे लिंक आपका कितना आया? 2000 पे लिंक है 3000. तो यहाँ रिजल्ट ओवरऑल कितना आया इसका? 3000. तो ये 3000 कहाँ स्टोर हो जाएगा? P में. तो P में क्या आ गया मेरा? फर्स्टली 3000. ओके, मीन्स P कहाँ पॉइंट कर देगा? यहाँ 3000. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. नाउ नेक्स्ट लाइन. सो व्हाट इज नेक्स्ट लाइन? फर्स्ट लिंक इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ link. So this is over. First of link equal to P of link, P arrow link arrow link. So it is P of link of link. Okay, so again observe very carefully. So this is P arrow link. So what is P arrow link? P कितना है? 3000. 3000 का link कितना है? 4000. So this is 4000 and 4000 का link कितना है? 4000 लिंक इज 5000. सो इट इज 5000 और 5000 कहाँ स्टोर होगा? 5000 विल बी स्टोर टू दिस. सो दिस इज व्हाट? फर्स्ट इज व्हाट? 1000. तो 1000 की लिंक में क्या स्टोर हो जाएगा? 5000. तो 1000 की लिंक ये है, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा? दिस प्लेस विल बी रिप्लेस्ड विद 5000. मीन्स ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट ना करके अब कहाँ पॉइंट करेगा? दिस पर्टिकुलर लोकेशन 5000. This location. Okay, so this is the impact of this line. Next line है ना. So what is next? Next line is P arrow. It is 4 times link है ना. So link and link and equals to P. I think 4 times na. 1 2 3 4. Okay, fine. So now resolve it. So it is also very simple.
So first of all, what is P? P is what? P is your 3000 currently है ना. Solve this first of all. So what is P link is 3000 का link कितना है? 3000 का link is 4000. Now what is 4000 link? तो 4000 का link it is visible. 4000 का link is what? 4000 link is 5000. So this will give you 5000. Okay, now 5000 का link. So what is 5000 link? 5000 के link पे आपका है 6000. Okay, so this is 6000 and 6000 का link. So what is 6000 link? 6000 arrow this 6000 का link. 6000 के link पे P कितना है आपका? P is what? P is 3000. तो 6000 के link पे 3000 अपडेट हो जाएगा. तो 6000 का link क्या है ये? तो यहाँ null के प्लेस पर क्या अपडेट हो जाएगा आपका? 3000. So this will change to 3000. 3000 मीन्स ये अब null पे पॉइंट ना करके ये आपका पॉइंट कहाँ करने लगेगा? This will point to this cell 3000. Okay, this cell. Okay, now final answer. So what is that? First link. What is first link? First link is first का link change हो चुका है. First का link आपका हो गया 5000. So यहाँ कितना आएगा? This will give you 5000. फिर आपका 5000 का link. So what is 5000 link? So see, observe carefully. 5000 link is 6000 है ना. तो यहाँ हमको मिला 6000 और फिर 6000 का link. So 6000 पे link कितना है? Again 6000 पे change हो चुका है link. So 6000 का link मिला हमें 3000. So it is 3000 और 3000 का data. So what is 3000 data? So 3000 data will be 3000 this location and data is what? Data is C. So this will give you C as the answer. So this is your final answer. So this is the output of this program. This is the output of this program. Okay. So I hope that the basic concept of linked list is clear to you people. Okay. And if you are feeling any difficulty, so you are free to ask. Just write in the comment box section. Okay. And also if you are new to this video, then please refer my previous video जिसमें मैंने explain किया है आपको structures. Okay. तो structure वहाँ पहले just go through the programming of structure. It's very easy because ultimately linked list implementation is done with the help of what? Structure programming. Okay. Now next, write a program to create a node of the linked list with data X. So here the main twist is what? एक मुझे node create करना है, ठीक है, लिंक लिस्ट का, जिसमें डेटा क्या हो? X. मीन्स समथिंग लाइक दैट. इस तरीके का एक नोड क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मेरा एक डेटा होगा और एक मेरा लिंक होगा. और डेटा क्या होगा मेरा, या फिर लिंक के प्लेस पर वट एवर इट इज, लिंक और नेक्स्ट एनीथिंग है ना. नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट पॉइंटिंग एड्रेस. डेटा क्या होगा मेरा? X होगा. तो डेफिनेटली यहाँ कोई नेक्स्ट की लिंक तो होगी नहीं, तो यहाँ क्या होना चाहिए प्रॉपरली? इट मस्ट बी नल. ओके. और ये डायनेमिकली ये मेमोरी चाहिए मुझे एलोकेट करना है. तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या यूज करता हूं मैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेलॉक है ना, मेलॉक फंक्शन यूज करेंगे हम. तो मेलॉक फंक्शन किस लिए यूज होगा मेरा? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ओके. और फ्री फंक्शन मेरा पता है आपको, फ्री किस लिए यूज होता है? अगेन फ्री फंक्शन इज फॉर डी एलोकेशन. ओके. डायनेमिकली डी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन. सो फॉर डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन है ना, हम क्या यूज करते हैं? फ्री. ओके. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन कि हमें यहाँ X डेटा क्रिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का एक नोड क्रिएट करना है, ठीक है. तो नोड क्रिएट करना है मुझे, तो नोड क्रिएट करने, और ये हेडर, ये किस हेडर फाइल्स में होते हैं? ये सारे हेडर फाइल्स होते हैं stdlib, ठीक है, .h हेडर फाइल, ठीक है. तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, ठीक है, मेलॉक फंक्शन एंड व्हाट? फ्री फंक्शन. तो हमें सबसे पहले ये एक नोड क्रिएट करना है. तो नोड क्रिएट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी चाहिए मुझे. तो हाउ टू malloc फंक्शन, विद द यूज ऑफ malloc फंक्शन. कितनी मेमोरी चाहिए?
तो अगर मुझे इंटीजर साइज चाहिए होता तो मैं साइज ऑफ इंटीजर लेता, बट मुझे साइज ऑफ क्या चाहिए, स्ट्रक्ट नोड। तो साइज ऑफ चाहिए मुझे किसका, स्ट्रक्ट नोड का। तो स्ट्रक्ट नोड का एक साइज चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके का एक ब्लैंक बॉक्स जो है वो एलोकेट हो जाएगा। बट ये बॉक्स मुझे चाहिए, लेकिन इसका एक एड्रेस चाहिए कि पर्टिकुलर इसका एड्रेस। तो एड्रेस किसमें स्टोर होता है, पॉइंटर में। तो इसको मुझे फिर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट किसमें करना पड़ेगा, पॉइंटर में। और पॉइंटर का टाइप क्या होगा, इंटीजर तो है नहीं, ओवरऑल क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का मुझे एक पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा। तो ये स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। टाइप कास्टिंग आई थिंक यू नो, है ना। तो दिस इज व्हाट, साइज, है ना। तो साइज अगर हमारे केस में देखें तो अगर हम इंटीजर एज्यूम करें तो 2 और 2 4 बाइट्स, तो 4 बाइट का एक चंक स्टोर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, है ना, जिसका आपको डायनेमिकली एलोकेट हुआ है। और ये क्या है, ये टाइप कास्टिंग है। सो दिस इज व्हाट, टाइप कास्टिंग। ओके, फाइनली ये स्टोर होगा किसमें, सम रैंडम, है ना, व्हाट, पॉइंटर, है ना। तो p पॉइंटर हम अज्यूम कर लेते हैं, बट p का आपका पॉइंटर के का डिक्लेरेशन कैसे होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार p, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इन 2 लाइंस ऑफ कोड से आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व केयरफुली। इन 2 लाइंस ऑफ कोड से आपका इस तरीके का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिस पर p पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका p का डेटा x करना, तो p का डेटा x कैसे करेंगे कि p एरो डेटा इक्वल्स टू x, और p का नेक्स्ट क्या करना है, नल। तो p एरो नेक्स्ट इक्वल टू व्हाट, नल। और फाइनली जो p जहां पॉइंट कर रहा है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम रिटर्न करेंगे व्हाट, p के एड्रेस को। तो ये अल्टीमेटली रिटर्न करेगा। तो जो भी ये फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज आल्सो हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न टाइप। ओके, नाउ मूव टू एक्चुअल पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वेरी सिंपल। सो फर्स्टली हमने क्या किया है, एक गेट नोड फंक्शन लिया है, ठीक है। गेट नोड मींस हम नोड क्रिएट कर रहे हैं विद डेटा इंटीजर x डेटा में स्टोर करना है उसमें। ओके, तो यहां इसका रिटर्न टाइप क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज रिटर्न टाइप, दिस इज रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। ओके, एंड ये क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, ये फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, रिटर्निंग पॉइंटर। ओके, पॉइंटर किस टाइप का पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, सो वेरी सिंपल, ये p हमने एक पॉइंटर लिया, सो ये p एक पॉइंटर बना लाइक दिस, ठीक है। सेकंड लाइन का इंपैक्ट क्या होगा, p पॉइंट करेगा malloc फंक्शन से, एक हमने यहाँ डेटा स्टोर किया, ये एक साइज लिया रैंडमली। तो ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का साइज लिया, तो यहाँ 2 पार्ट होंगे, इसका एक डेटा पार्ट होगा और इसका एक नेक्स्ट पार्ट होगा। स्ट्रक्ट नोड हमने देखा पहले, स्ट्रक्ट नोड में 2 पार्ट है। ओके, एंड ये इसका जो ये चंक आपको एलोकेट हुआ है, इसको एड्रेस में कन्वर्ट किया ताकि ये टाइप कास्टिंग है, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड में, और फिर p से पॉइंट करा दिया। सो इट इज वेल। नाउ स्टार p डॉट डेटा इक्वल टू x। तो इस लाइन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं कि p एरो डेटा इक्वल टू x, बोथ आर सेम। तो मीन्स p को सिलेक्ट करो और उसका p मीन्स p को वैल्यू एट, स्टार मीन्स वैल्यू एट, ये सिलेक्ट हो गया। इसका फिर कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया, डॉट डेटा, वहां क्या रखा, x। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली कि p एरो नेक्स्ट इक्वल टू व्हाट, p एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो इसका p सिलेक्ट करके इसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। फाइनली रिटर्निंग p, सो अल्टीमेटली इट इज रिटर्निंग व्हाट, पॉइंटर। ओके, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। सो रिटर्न टाइप इसका स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। तो आगे के प्रोग्राम्स में अगर मुझे इस तरीके का रैंडमली एक डायनेमिक, है ना, डायनेमिकली एक नोड, मुझे स्ट्रक्ट नोड या डायनेमिकली लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट करना है रन टाइम पर, तो मैं किस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, स्ट्रक्ट गेट नोड फंक्शन को, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम मैंने देखा जिसमें गेट नोड फंक्शन डिजाइन किया। ओके फाइन, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। सो राइट अ प्रोग्राम to add a node at the end of the linked list with data x. Okay, so very interesting program. Means हमें एक linked list already given है, ठीक है। linked list given होने का मतलब क्या है कि उसका हमें एड्रेस गिवन है ना, स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, ठीक है। लेट अस सपोज s, तो स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है और हमें
क्या करना है, एड अ नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट विद डेटा एक्स, एक एक्स नोड हमें ऐड करना है लास्ट में इसमें, ठीक है, सी लाइक डी लाइक ई, और यहाँ ये क्या है, ये हमारा नल है, नल है। तो ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है, हमें एक एक्स नोड क्रिएट करना है और उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक हमारा बड़ा आसान होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनिशियली अगर हम देखें, है ना, हमें सारी कंडीशंस कवर करना होती है, तो इनिशियली अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो अगर लिंक लिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिंक लिस्ट है अवेलेबल, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेट नोड से हम एक डेटा, है ना, गेट नोड से हम एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर गेट नोड को कॉल करूं, जैसे अभी मैंने प्रीवियस फंक्शन जो डिजाइन किया था गेट नोड, किसके साथ, एक्स के साथ, तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एक पॉइंटर रिटर्न करके देगा, और लेट अस सपोज वो पी है, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्ट नोड स्टार पी रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इन लाइंस का इंपैक्ट ये होगा कि एक पॉइंटर पी के साथ एक एज इट इज एक्स और इसका पार्ट नल होके एक मुझे डेटा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का एक चंक एलोकेट हो जाएगा। अब सिंपली मुझे क्या करना है कि मुझे एस दिया हुआ है, तो मुझे एस कहां तक जाना है, ये मूव करते करते लास्ट तक नल तक ले जाना है, ठीक है। तो नल तक ले जाना है, तो नल तक ले जाने के लिए बड़ा आसान कोड हो सकता है इसका, क्या हो सकता है कि वाइल, ठीक है। अब यहाँ एस है, तो यहाँ एस के प्लेस पे किसी को मैं, है ना, क्यू ले लेता हूं यहाँ पे, है ना। तो वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू व्हाट, और क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट क्यू, क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नल, मीन्स क्यू का नेक्स्ट पार्ट अभी नल नहीं है ना, तो आगे बढ़ाना है इसको। तो क्यू को फाइनली क्या करना है मुझे, क्यू को क्यू नेक्स्ट पे ले जाना है, ठीक है। तो अगर ये पार्ट में फॉलो करूंगा तो क्यू कहाँ आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर फाइनली क्योंकि क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है तो यहाँ आ जाएगा, फिर फाइनली क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, और फाइनली क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा क्यू, तो क्यू का नेक्स्ट नल हो चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखिए मेरे पास पॉइंटर्स अवेलेबल हैं, एक मेरा पी पॉइंटर अवेलेबल है जिसको मुझे ऐड करना है लास्ट में, एक क्यू है जो लास्ट नोड पे है। तो सिंपली मुझे लिंकिंग करना है, तो लिंकिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिंकिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि क्यू का जो नेक्स्ट है, क्यू के नेक्स्ट में पी को स्टोर कर दूंगा। तो क्यू का नेक्स्ट क्या है, ये, तो यहाँ पर मैं पी को स्टोर करूंगा, मीन्स ये जो पॉइंट कर रहा है ये कहाँ कर लगेगा पॉइंट, ये पी वाले को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद पी जहां पॉइंट कर रहा है, पी को मैं कहाँ पॉइंट करा दूंगा, नल पे, ठीक है, क्योंकि पी अब रिक्वायर्ड नहीं है, लिंकिंग हो चुकी है। तो या तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ पी इक्वल टू नल, या फिर p इक्वल टू पी नेक्स्ट भी कर सकता हूँ। तो p इक्वल टू पी नेक्स्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि p नेक्स्ट अभी क्या है, नल है, तो नल कहाँ स्टोर हो जाएगा, p में, मीन्स p यहां से हटके p कहाँ पॉइंट करने लगेगा, नल पे पॉइंट करने लगेगा। और फाइनली मुझे फ्री करना पड़ेगा किसको, p को, तो p को मेरा यूज हो चुका है, p फ्री कर दिया। तो ये तो हो गया कब, जब ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, ये पार्ट हो गया। बट अगर लेट अस अज्यूम लिंक लिस्ट हो ही ना, है ना, एम्प्टी लिंक लिस्ट हो, अगर लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट हो एम्प्टी, हमारी एम्प्टी हो, तो एस मेरा आया है बट एस इज पॉइंटिंग, है ना, नोवेयर। तो हमें फाइनली गेट नोट तो करना ही करना है, तो मैं गेट नोट करूंगा, तो गेट नोट से क्या हो जाएगा, एक पी पॉइंटर है जो कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, गेट नोट, ठीक है। तो जैसे मैंने गेट नोट कॉल किया, तो गेट नोट से क्या होगा, एक एक्स वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये पी होगा और ये x होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नल। और फाइनली फिर मुझे क्या करना है, ये तो x तो है ना, तो कंडीशन में चेक करूंगा कि इफ s अगर हमारा क्या है, s डबल इक्वल्स टू क्या है, नल, अगर s नल है तो सिंपली मीन्स एम्प्टी लिंक लिस्ट है और लास्ट में ऐड करना है, तो लास्ट मीन्स यही क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट नोड। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि s इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, p, मीन्स p जहां पॉइंट कर रहा था वहीं s करने लगेगा, तो s यहाँ पॉइंट ना करके कहां पॉइंट करने लगेगा, s यहाँ पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और फिर p को मैं या s को एक किसी को फ्री कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ p इक्वल टू पी नेक्स्ट कर देंगे, p इक्वल टू पी नेक्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा कि p मेरा कहाँ पॉइंट करने लगेगा, p करने लगेगा नल पे पॉइंट, ठीक है। तो ये इस लाइन का इम्पैक्ट ये होगा, और इस लाइन का इम्पैक्ट होगा कि ये यहाँ आ जाएगा। और फाइनली मैं कर दूंगा फ्री p को, तो फ्री p करूंगा तो p के लिए मेमोरी क्या हो जाएगी, डीएलोकेट हो जाएगी, ठीक है।
बट ये मैं कब चेक करूंगा, ये इनिशियल कंडीशन हो सकती है कि अगर पॉइंट एड्रेस हो ही ना, मीन्स लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, और अगर फुली लिंक लिस्ट है तो फिर ये पार्ट फॉलो होगा। ठीक है, सो सिंपली मैं अरेंज करके इसको लिख देता हूं, है ना, एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो व्हाट विल बी द आंसर? सो फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन का नेम रखा है एट द एंड, है ना, व्हाट, सो एट एड एक्स एट एंड, है ना, ये फंक्शन का नेम है कि एक्स को एंड में ऐड करना है। आपको लिंक लिस्ट दी है एस और एक इंटीजर पार्ट दिया है एक्स, तो आपने क्या किया यहाँ पे कि स्ट्रक्ट नोड एक क्यू पॉइंटर पॉइंट कराया है इस पे, जैसे कि मैंने बताया आपको प्रीवियसली। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एस था, ये ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, लेट अस सपोज ये आपका नल है। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ कि क्यू को यहाँ पी जहां एस जहां पॉइंट कर रहा था वहां क्या कराया, क्यू को पॉइंट कराया, तो यहाँ क्यू को पॉइंट कराया। फिर एक गेट नोड क्रिएट किया, तो यहाँ इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, दिस लाइन इम्पैक्ट इज व्हाट, कि यहाँ एक पी पॉइंटर होगा जो कि एक्स डेटा होगा और जिसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, देन ये मेरा क्या है, ये एम्प्टी लिंक लिस्ट के लिए है, सो दिस कंडीशन इज फॉर एम्प्टी लिंक लिस्ट, एम्प्टी लिंक लिस्ट। ओके, तो मैं बता चुका हूं अगर एम्प्टी होगा तो एस जहां पॉइंट कर रहा है वहां पी जहां पॉइंट कर रहा है वहां एस करेगा और फ्री कर देंगे हम एस को, या एस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देन अगर एल्स पार्ट होगा मींस लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी नहीं है, तो एल्स पार्ट होगा तो एल्स पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कि क्यू जहां पॉइंट कराया है ना, या फिर हमें एस जहां है वट एवर, एक किसी पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, तो हम एस नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए एस को मैं आगे बढ़ाता गया, तो एस आगे बढ़ बढ़ के कहाँ आ जाएगा, फाइनली एस यहां से यहां आएगा, यहां से एस यहां आएगा और यहां से एस यहां आ जाएगा, तो यहां आ चुका है। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एस के नेक्स्ट में पी, तो एस के नेक्स्ट में मीन्स यहां पर पी का एड्रेस आ जाएगा तो ये यहां पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि एस इक्वल टू पी नेक्स्ट, तो एस जहां पॉइंट कर रहा है ना, एस इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, तो पी का जो नेक्स्ट है वहां पहुंच जाएगा एस, तो मीन्स पी का नेक्स्ट क्या है, नल, तो एस यहां पॉइंट ना करके एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस इक्वल टू हो जाएगा नल, इस लाइन का इम्पैक्ट, और p इक्वल टू आपका p नेक्स्ट हो जाएगा। तो p इक्वल टू p नेक्स्ट करने का मतलब क्या है कि p भी फाइनली आपका क्या हो जाएगा, यहां से हटके, यहां से p हटके कहां पहुंच जाएगा, p नेक्स्ट क्या है, नल। तो फाइनली आपकी लिंकिंग हो चुकी है, पॉइंटर्स भी फ्री हो चुके हैं, फ्री कर देंगे हम इसको p और s को, है ना, और रिटर्न क्या कर देंगे, q, क्योंकि q हमारा स्टार्टिंग नोड पे जो है, स्टार्टिंग हेड नोड पे पॉइंट कर रहा है, तो फाइनली रिटर्न करेंगे q। तो ये रिटर्न क्यों कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा struct node star, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। ठीक है, इस फंक्शन का, सो दिस इज द फंक्शन एड नोड एट व्हाट, एड नोड एट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो आई होप दैट अप टिल हियर यू आर कंफर्टेबल। ओके, सिंपल प्रोग्रामिंग पार्ट, थोड़ा सा लॉजिक हमें है ना डिजाइन करना है, बेसिक स्टफ जो है वो बता चुका हूं आपको क्या है। ठीक है, तो ये गेट नोड है, गेट नोड भी मैंने बताया आपको इस तरीके से, अगर गेट नोड है या कॉल भी ना करे तो यहाँ सिंपली 2 लाइंस का कोड होगा यहाँ इस प्लेस पे, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट, so what is next, write a program to insert an element at the start of the linked list। so it is very simple, start में ऐड करना है ना, with data x। तो let us suppose दो पार्ट हो सकते हैं इसके। ठीक है, दो पार्ट क्या हो सकते हैं कि अगर लिंक लिस्ट आपकी क्या हो, एम्प्टी हो, तो एम्प्टी है अगर, तो एस कहां पॉइंट करेगा, कहीं भी नहीं। ठीक है, तो गेट नोड से हम क्या कर लेंगे, एक्स डेटा के साथ नल यहाँ पे हम पी पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा फाइनली। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो है आपका एस क्या है, नल है, तो ये कंडीशन होगी इफ एस डबल इक्वल टू नल, मीन्स ये एम्प्टी है आपकी लिंक लिस्ट। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में ऐड करना है, तो स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप कि सिंपली स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों केस सेम होंगे, तो यहाँ क्या करेंगे कि एस इक्वल्स टू एस कहाँ पॉइंट करने लेगा, पी पर। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग कंडीशन हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे आप वेदर एस और पी, वॉट एवर, एस को रिटर्न कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी का कंडीशन हो जाएगा। बट लेट अस सपोज कि सम लिंक लिस्ट इज देयर, ओके, some linked list is there, so this is s, this is not here,
change it because at starting we are supposed to add something. So let us suppose this is A, okay, this is B, and this is what, C, this is D, and this is null part. और यहाँ कौन पॉइंट कर रहा है, S पॉइंट कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट में ऐड करना है, तो स्टार्ट में ऐड करने के लिए क्या हो सकता है, फिर स्टार्ट में ऐड करने के लिए पहले तो गेट नोड से हम एक डेटा P नोड क्रिएट कर लेंगे, लाइक दिस P नोड हमने क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें डेटा क्या होगा X, और ये पॉइंट कौन करेगा, P, और यहाँ क्या होगा, नल, ठीक है। दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज नल, ओके। अब फाइनली हमको क्या करना है, लिंकिंग करना है, दैट्स इट। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो S है, तो P के नेक्स्ट में, ऑब्जर्व केयरफुली, मैं P के नेक्स्ट में S डालूंगा, तो ये P का नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट, तो ये यहाँ अब ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा, S पे। और फिर फाइनली आप ये करने के बाद देन S अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, S कहाँ जाना चाहिए, यहाँ P है, तो S कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ P कर रहा है, तो अब S यहाँ ना रह के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली आप एक किसी को फ्री कर देंगे, तो लेट अस सपोज P इक्वल्स टू, मैं नल कर देता हूँ, है ना। तो P में मैंने कहा क्या कर दिया, नल, तो P यहाँ क्या हो गया, P की वैल्यू फाइनली आपकी यहाँ से हट के नल हो गई, ठीक है। और रिटर्न किसको कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं S को। तो ये पार्ट होगा आपका कब, व्हेन लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो दिस पार्ट इज लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है तो ये सीन होगा, एम्प्टी है तो ये सीन, ठीक है। सो फाइनली लेट्स, है ना, सी दिस। सो दिस इज द कोड। So struct node, because it is returning pointer, so struct node star, and name of the function is add start x, start में x ऐड करना है, s जो आपका लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस है, और इंटीजर x आपको डेटा है जिसको ऐड करना है। p पॉइंटर लिया मैंने, तो यहाँ सेम वही, ये जो 3 लाइंस ऑफ कोड है, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस कोड इज व्हाट, दिस कोड इज व्हाट, गेट नोड। ये जो कोड है आपका, ये क्या है, गेट नोड, प्रीवियस कोड है ना। तो ये मेलॉक फंक्शन से साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड आपने क्रिएट किया, उसको पॉइंटर में कन्वर्ट किया, एड्रेस में P से पॉइंट कराया, P के डेटा में x रखा, P के नेक्स्ट में नल। तो आपका फाइनली हुआ क्या कि यहाँ पे आपका, ठीक है, दिस प्लेस आपका यहाँ P पॉइंटर आया, और यहाँ क्या आ गया, नल आ गया, और आपका यहाँ पे लेट अस अज्यूम A B एंड C लाइक दिस, और यहाँ ऑलरेडी क्या था, नल। तो ये कहाँ पॉइंट कर रहा था, S पे, ओके। सो फाइनली फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में कि P नेक्स्ट में S, सो दिस इज ऑलरेडी आई, सो P नेक्स्ट मींस दिस पार्ट, तो दिस पार्ट में आपने क्या किया, दिस पार्ट इज रिप्लेस्ड विद S, सो ये कहाँ पॉइंट कर लेगा, S जहाँ पॉइंट कर रहा है, एंड फाइनली S इक्वल्स टू P, तो S अब यहाँ से रिप्लेस होकर कहाँ आ जाएगा, P वाले लोकेशन पे, तो ये, और P इक्वल्स टू नल कर दिया, तो P आपका फाइनली P कहाँ हो गया, नल पे हो गया, और फ्री कर दिया P को, तो P की मेमोरी डीएलोकेट हो गई, है ना, और फाइनली डीएलोकेशन, और रिटर्न किया S को, तो S मींस ये स्टार्टिंग एड्रेस, तो ये न्यूली लिंक लिस्ट है ना, जिसमें एट द स्टार्टिंग X नोड इंसर्ट हो चुका है, ठीक, लाइक, तो ये आप रिटर्न कर रहे हैं फाइनली। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, वेरी सिंपल प्रोग्राम, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्ट्रक्चर देन इट इज वेरी सिंपल, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बहुत ही टिपिकल आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बट नथिंग इज देयर, है ना, वेरी सिंपल। सो जस्ट गो थ्रू स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डिफाइन क्या है, डिफाइन किस तरीके से करते हैं, और उनको मींस मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से कराते हैं उसका, ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो डेफिनेशन इज डिफरेंट और डिक्लेरेशन इज डिफरेंट थिंग, okay. Now let us move to next part. So next question is what, write a program to insert a node with data x after a node with data y in the given linked list, okay. means हमें एक नोड जिसमें डेटा x है ये इंसर्ट करना है आफ्टर नोड, सो लेट अस टेक दिस वन, और ये अज्यूम करना है कि y ऑलरेडी लिंक लिस्ट में है। तो ये कुछ इस तरीके का सीन है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है,
क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एस है, लिंक लिस्ट है, तो ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ लेट अस सपोज सी, ठीक है, यहाँ पे वाई है ना, और यहाँ ये लास्ट भी हो सकता है, वॉट एवर है ना। वाई के बाद फिर ये लेट अस सपोज डी, ओके, ये लेट अस सपोज ई, और ये क्या है, लेट अस सपोज नल पार्ट, ओके। तो ये मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ देन, तो यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इज डी एंड दिस इज ई, नल पार्ट, ओके। तो हमें यह क्या करना है कि ये अज्यूम करना है कि बाई देयर इज इन लिंक लिस्ट, तो ये अजम्पशन हो गया। इसके बाद एक नोड ऐड करना है जिसमें डेटा क्या हो, मेरा एक्स, ठीक है। तो ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो यहाँ मुझे एक नोड ऐड करना है जिसमें डेटा क्या होना चाहिए, एक्स डेटा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये कहां से आएगा, हमारा गेट नोड वाला कोड, ठीक है, ये नल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नल पार्ट। तो यहाँ देखिए ऑब्जर्व करिए, तो हमें पहले ये एस पॉइंटर को मूव करके, तो यहाँ मैं एक पॉइंटर सेट कर लेता हूँ, लेट अस सपोज क्यू, ठीक है। फिर इस क्यू को क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। कब तक मूव करना है, जब तक कि ये वाई तक ना पहुंच जाए। तो मैं कोड यहाँ क्या लगाऊंगा, कोड लगाऊंगा कि वाइल क्यू डेटा, क्यू का जो डेटा है दैट इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर वाई के इक्वल नहीं होता है तो मुझे क्यू को आगे मूव करना है। तो क्यू इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, तो क्यू मेरा फर्दर यहां से यहां आ जाएगा, फिर फर्दर यहां से मेरा यहां आ जाएगा क्यू, और फिर यहां से मेरा यहां आ जाएगा क्यू। तो फाइनली जब ये लूप ओवर होगा तो क्यू मेरा वाई नोड जहां है, वाई डेटा वाला नोड वहां पॉइंट कर रहा है। अब फाइनली मुझे लिंकिंग करना है, ठीक है। तो देखिए लिंकिंग करना बड़ा आसान है। लिंकिंग करने के लिए मेरे पास देखिए तीनों नोड्स के एड्रेसेस होना चाहिए, तो तीनों नोड्स के पॉइंटर होना चाहिए। तो ये वाई नोड वाला पॉइंटर कौन सा है, क्यू, और ये नोड तो है ही एक्स वाले का पी है, और ये जो डी नोड है इसका पॉइंटर मेरे पास कहाँ है, जो क्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट फील्ड में। तो अगर मैं पहले ये चेंज कर दूं तो मेरा ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो ये पहले चेंज नहीं करना है, पहले इसकी पी वाले नोड की ये डी वाले नोड से लिंकिंग करना है। तो फर्स्टली मैं क्या करता हूं, देखिए ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि पी का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, पी के नेक्स्ट पार्ट में मीन्स दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो यहाँ क्या रखना है, क्यू का जो नेक्स्ट होगा, क्यू का नेक्स्ट मीन्स ये वाला बॉक्स है ना, तो क्यू का नेक्स्ट रखना है। तो क्यू का नेक्स्ट रखने से क्या होगा कि यहां पर ये क्या पॉइंट करने लगेगा, ये इस पर पॉइंट करने लगेगा। फिर अब फाइनली अब मैं फ्री हो चुका हूं, तो यहाँ क्यू का जो नेक्स्ट फील्ड है यहां मैं अपडेट कर सकता हूं, जहां पी है वहां पॉइंट करा सकते हैं। तो क्यू का सिंपली है ना, आपको पॉइंटर्स चेंज करना है केयरफुली। क्यू के नेक्स्ट पार्ट में आप क्या स्टोर करेंगे, पी। सो यहाँ क्यू के नेक्स्ट पार्ट में आप जब पी स्टोर करेंगे तो क्यू का नेक्स्ट क्या है, ये, तो यहाँ कहाँ पॉइंट करेंगे, पी पे। तो ये लिंक ब्रेक हो गया, तो ये इन बिटवीन ऐड हो गया। अब पी आपका दिख रहा है फालतू का पॉइंटर है ना, मींस अननेसेसरली इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। तो यहाँ फ्री करना है इसको, तो पहले पी को नल पे पॉइंट कराना पड़ेगा। तो पी को मैंने नल पे पॉइंट कराया, तो पी यहां से गया, पी कहाँ गया, नल पे। और फाइनली क्या करना है, फ्री करना है आपको किसको, पी को। तो पी को आपको फ्री करना है, तो फ्री हो गया। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सारा कुछ ओवर हो चुका है, ठीक है। आपका क्यू भी नल पे कर दीजिए पी के साथ साथ, तो यहाँ क्यू भी नल पे कर देता हूं मैं, क्यू का भी कोई रोल नहीं रह गया, तो क्यू भी नल पे गया। तो क्यू यहां से कहां चला गया, नल पे, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, नल। और साथ में इसके अलावा आपको फ्री किसको भी करना पड़ेगा, क्यू को भी। तो क्यू को भी आप फ्री कर दीजिए, तो पी और क्यू दोनों फ्री हो गए। अब फाइनली केवल एक पॉइंटर रह गया एस, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे एड्रेस है ना पॉइंट कर रहा है। और ओवरऑल आपकी जो लिंक लिस्ट है वो अपडेटेड हो चुकी है। वाई नोड के बाद एक्स नोड आपका ऐड हो चुका है इन बिटवीन। तो आप यहाँ फाइनली रिटर्न किसको करेंगे, तो आप रिटर्न करेंगे किसको, एस को, ठीक है। एस इज द स्टार्टिंग एड्रेस। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टू एक्चुअल कोड फॉर दिस, है ना। सो व्हाट इज एक्चुअल कोड, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो यहाँ ये क्या है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, बिकॉज हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्या हो गया, हमारा रिटर्न टाइप। ये नेम हो गया फंक्शन का, इंसर्ट नोड एक्स आफ्टर बाय, ये स्टार्टिंग एड्रेस हो गया, और ये इंटीजर जो हमें ऐड करना था वहां, ठीक है। तो ये सेम कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ एस था,
और अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। सो यहाँ ए है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, यहाँ पर आपका सी है, यहाँ आपका वाई है, और यहाँ पर लेट अस सपोज आपका डी है, और ये नल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्यू पॉइंटर सेट कर देना है। तो क्यू पॉइंटर मैंने सेट किया जहाँ पे एस है। फिर यहाँ गेट नोड से एक पी पॉइंटर का नोड बनाया यहाँ पे, जिसमें एक्स डेटा होगा, पी पॉइंटर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो गई। थर्ड लाइन क्या है, लूप है। तो क्यू का डेटा जब तक वाई ना हो जाए तब तक क्यू को बढ़ाना है। तो क्यू का डेटा वाई नहीं है तो क्यू को बढ़ाया, क्यू का डेटा वाई नहीं है तो क्यू को बढ़ाया, क्यू का डेटा वाई नहीं है तो क्यू को बढ़ाया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर फाइनली इस लाइन को देखें तो P के नेक्स्ट में Q का नेक्स्ट स्टोर करना है। तो P का नेक्स्ट क्या है, ये, ठीक है। P के नेक्स्ट में Q का नेक्स्ट, तो P का नेक्स्ट ये है, तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ Q का नेक्स्ट, तो Q का नेक्स्ट क्या होगा, Q का नेक्स्ट इज दिस लोकेशन। फिर Q के नेक्स्ट में P स्टोर करना है, तो ये Q का नेक्स्ट है, तो यहाँ P मीन्स ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये यहाँ पॉइंट करेगा, तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। और P और Q को नल कर दिया और P और Q को फ्री कर दिया। तो P और Q को नल हो गया, तो P इक्वल टू Q इक्वल टू नल, है ना, और फ्री P किया और फ्री Q किया आपने, ठीक है। तो ये तीन है ना, 3-4 लाइन्स ऑफ कोड, एंड रिटर्न कर दिया S को। तो S यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो रिटर्न, तो अपडेटेड लिंक लिस्ट हमें बन गई। ओके, फाइनली दिस इज द कोड। Okay, so I think this is clear to you, है ना। So there is nothing. So this is the part. Okay, and अभी इसमें कई सारे parts हैं इसकी लिंक लिस्ट के। So ये बेसिक पार्ट था, है ना। एक्चुअल बेसिक मीन्स सम इंट्रोडक्टरी पार्ट वी कैन से। तो यहाँ कई और पार्ट्स भी आएंगे नेक्स्ट, तो वी विल सी इन डिटेल। सो दोज हु वांट टू लर्न, है ना, द स्ट्रक्चर एंड व्हाट यूनियन पार्ट, सो दे कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियो, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है। बिकॉज लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, स्ट्रक्चर पार्ट। ओके, सो finally we can say this is the end of this lecture. Okay, we are at the end moment, है ना, and next time we will see what next part. So if you are learning from these videos and liking the quality of the contents, so then like, subscribe and share this channel to your learning community, so that other will also get benefited by the same, and happy learning to all of you. Stay safe.